Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 17th November and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for next trading day, which will be on 18th November. Friends, if you are new to our YouTube channel, do subscribe this channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload any new video, you get notification. And of course, be generous to share the video with your friends and trading communities who can be equally benefited with the quality knowledge. अगर आज का डेली चार्ट देखें फ्रेंड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का यू कुड सी टुडे वाज आफ्टर दीपावली इट वाज अ फर्स्ट ट्रेडिंग डे and the day was very bullish. Bulls took the control, and Nifty as well as Bank Nifty opened with a big gap up with a bullish bias. Of course, first half में तो actually Bank Nifty and Nifty consolidate करते रहे, but second half में yes, there was a uh, buying, especially in NBFC and the banking sector. Auto and metal sector also pulled up Nifty further up. Nifty closed at 12,874 friends with a gain of 94 points, while its Bank Nifty closed at 29,181 with a gain of 587, right? So Bank Nifty ने इनफैक्ट सैटरडे को भी मुहूर्त ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में भी 1 घंटे में 129 पॉइंट गेन किए थे. ओवरऑल मार्केट की ब्रेड था आज पॉजिटिव रही. 30 स्टॉक्स एडवांस, 19 डिक्लाइंड एंड 1 रिमेन अनचेंज्ड आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50. We had estimated 12,700 13,000 range for Nifty for today, and Back Nifty के लिए हमने 28,000 से 29,100 की रेंज expect की थी with a bullish bias. That was based upon the data and technical analysis from the previous day. Right. So Nifty तो within the range trade की. Bank Nifty almost 100 point upper side upper side में move की, right? So as it closed at 29,181, so almost 100 point beyond upper limit गई. अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो आज भी निफ्टी ने एंड बैंक निफ्टी ने हायर हाई बनाए. नाउ अनफॉर्चुनेटली ये investing.com की वेबसाइट पे आपको सैटरडे की कैंडल नहीं दिख रही है. सो with respect to Saturday's candle, Nifty as well as Bank Nifty made higher high and higher lows, so uptrend continues. मतलब कंफर्म हो गया कि भाई अपट्रेंड कंटिन्यू है अभी एज ऑफ नाउ एटलीस्ट. एंड कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से इसने एक हैंगिंग मैन बनाया फ्रेंड्स निफ्टी ने, और हैंगिंग मैन जनरली एट हायर लेवल एक बियरिश रिवर्सल ट्रेंड पैटर्न होता है, और यू नीड टू बी केयरफुल, राइट? सो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में अपसाइड काफी ज्यादा है. इट इज स्टिल नॉट हाई. द हाई पॉइंट वाज ऑलमोस्ट 32,600 के आसपास में था. सो बैंक निफ्टी इज स्टिल ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट अभी भी हाई से नीचे है, while as Nifty is already crossed its lifetime high prior to COVID, right? जो कि 12,430 का था. So we are already trading almost 500 points above than that. But बैंक निफ्टी में भी काफी गुंजाइश है ऊपर जाने की. अगर फ्रेंड्स वीकली चार्ट देखें हम इसका, तो वीकली में ऑफ कोर्स क्योंकि ये वीक का आज पहला ट्रेडिंग डे था, तो यू कुड सी दैट मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न विल कम अप. बट बैंक निफ्टी काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है. इनफैक्ट अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे वीकली में, निफ्टी ऑल्सो इज मेकिंग अ बुलिश स्ट्रक्चर, राइट? लेट मी right. So both things put together are structure wise very clearly showing very bullish structure. अगर हम प्राइस एक्शन रेंज से देखें फ्रेंड्स, तो कंसिडरिंग दैट मार्केट इज एन ओवरबॉट जोन, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती तो दैट विल लीड टू अ करेक्शन, एंड इन सच अ सिनेरियो यू वुड सी 12,829, 12,797 जो कि आज का लो था. दे विल बी टू सपोर्ट लेवल्स, एंड अगर ये लेवल टूटते हैं, आज का लो टूटता है फ्रेंड्स, देन यू हैव 12,750, एंड फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट विल कम एट 12,720,
राइट। तो ये लोअर साइड में सपोर्ट है हमारे पास में प्राइस एक्शन से। एंड अपर साइड में अगर कल वापस बुलिशनेस आती है तो यू वुड सी दैट 12,912, 12,937, 13,000 and 13,093 could be our resistance levels, right? So we can say that from price action perspective, 12,720 on lower side, and right, let me put it this way, and 13,093 ये रेंज निकल के आ रही। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमको लोअर साइड में एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है 29,026 में, 28,845 पे सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट है, एंड द थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा हमको आज के लो पे जो कि था 28,726 का, एंड 28,520 जो है ये हमारा यू नो फ्राइडे का हाई था। सो दिस विल एक्ट एज द फाइनल सपोर्ट लेवल। सो आई विल जॉट इट डाउन दैट आल्सो 28,520 ऑन लोअर साइड। एंड अगर बैंक निफ्टी में कल बुलिशनेस आती तो योर फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज एट 29,273 which is today's high. Second will be at 29,564, so that means upside almost 300 पॉइंट के आसपास का बिना रेजिस्टेंस का मूव मिल सकता है आपको, राइट? And of course, we'll discuss your intraday trading plan at the end of the session. So don't forget to watch the video till the end. 29,564 अगर टूटता है फ्रेंड्स 29,790 नेक्स्ट लेवल है, अगेन 200 पॉइंट्स है इधर गैप, एंड देन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का गैप आपको फोर्थ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे मिलेगा जो पड़ेगा आपको 29,914 पे। सो ऑन द अपर साइड वी कैन से दैट 29,000, right, 914 could be our higher level, right? Let me clear it, right? So these are the levels you need to make a note of it, and we'll of course confirm the same with the data points. What are our data points of Nifty and Bank Nifty saying now? 19th November का option chain expiry, which will be on this Thursday, friends. If we look at that, and 12,874 पे आज क्लोज हुआ है, तो 12,850 या 12,900 किसी को भी एट द मनी मान सकते हैं। सो 12,850 को अगर हम एट द मनी समझते हैं फ्रेंड्स, तो 12,850 के आसपास में we'll have to see what kind of positions bulls and bears have created such that we know what is happening on options front, right? So let's look at this. So 12,850 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, ऑलमोस्ट 6 लाख। नॉट ओनली दैट, 12,900 पे भी 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुई है। सो 12,850 is working as a support one, of course, because 12,900 में भी प्राइस उसके ऊपर है नहीं, so we'll consider this as a support level only once the price is above than that. 12,800 seems to be my support level 2, where 1.6 million नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए और 2.4 million fresh total contracts यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, right? And that's the max OI also. And below than that 12,750 could be my support 3. यहाँ पे भी 500,000 contracts right हुए हैं, and overall 8 lakh contracts दिखाई दे रहे हैं। Below than that 12,700 यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, एंड बिलो दिस ऑल अनवाइंडिंग होना चालू हो गया बिकॉज प्रीमियम्स कम हो गई एंड नाउ ट्रेडर्स आर कॉन्फिडेंट दैट 12,700 के नीचे शायद मार्केट न जाए। हालांकि 12,700 2.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दैट विल वर्क एज अ सपोर्ट फॉर फ्रेंड्स। सो लोअर साइड 12,700 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अगर मैं कॉल साइड में देखूं फ्रेंड्स, तो कॉल साइड में ऑलमोस्ट 12,800 तक मुझे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आज बियर्स की हिम्मत फर्दर टूटी है। 12,700 पे ऑलमोस्ट 8.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। हाउएवर 12,700 की स्ट्राइक पे 1 मिलियन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी हैं, और 12,800 पे भी आपको 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सो यू मे सी दैट दिस शॉर्ट कवरिंग जो कि पार्टली आज हुई है, कल शायद ये शॉर्ट कवरिंग होगी जो कि मार्केट को थोड़ा और ऊपर ले जा सकती है। नाउ 12,850, that is a level where you can see that there is some call writing has happened, and possibly this may act as a resistance as the price is little below than this.
राइट। तो नहीं, 874 पे है, तो इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर है, राइट। सो 12,900 विल बी एक्टिंग एज माय रेजिस्टेंस वन। 12 जहां पे कि ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश हुए हैं, 12,950 पे ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। सो दैट विल वर्क एज R2 एंड माय R3 विल बी 13,000, जहां पे कि ऑलमोस्ट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश आए हैं फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल्सो अ मैक्सिमम OI, राइट। अगर 13,000, सो कल के लिए मुझे एक 12,700 से 13,000 की एक रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट अगर आप 13,050 पे भी देखेंगे, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, एंड अबव देन दैट एज वेल देयर इज अ गुड कॉल राइटिंग। आई वुड रादर कंसीडर 13,050 एज माय नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज फ्रॉम हियर। अगर 13,000 का लेवल का शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई और ये लेवल टूटा, इन दैट केस 13,050 या 13,100 कुड बी माय ट्रेडिंग रेंज। नाउ दिया, आज ट्यूसडे है, सो कल वेडनेसडे को शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ऑफ कोर्स थर्सडे इज द एक्सपायरी डे, सो आई कैन से दैट one minute friends, let me remove this, and so थर्सडे को हमको शायद उतनी शॉर्ट कवरिंग ना मिले जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही, शायद शॉर्ट कवरिंग कल हो सकती है। इन केस कल शॉर्ट कवरिंग हुई तो अपर लिमिट बढ़ जाएगी। सो 12,700 से लेके आपको 13,100 की कल की ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। इसका, इस ऑप्शन चेन सीरीज का पीसीआर है अभी 1.29, जो कि कल के कंपैरिजन में बढ़ गया है, राइट। नो, इट्स 1.12, सो इट्स 1.129 टुडे। सो स्टिल इट इज माइल्डली बुलिश। कल का आज के लिए जो पीसीआर हमने निकाला था वो भी माइल्ड बुलिश था फ्रेंड्स। सो let's look at what has happened on provisional data front. So today अगर आप provisional data पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो 4,905 का FIs ने इक्विटी मार्केट में बाइंग किया, while as DIs were net seller with the 3,829 crore rupees in cash market. ओवरऑल अगर हम ये पूरे महीने का FIs का पैटर्न देखें तो देवर 38,138 करोड़ का उन्होंने कैश में इक्विटीज बाई किया है, while as FIs DIs are net seller with almost 24,130 crore rupees, right? So that's a huge difference in the equity market. That's what is pulling the market up. So smart money is flowing in Indian market. On options front, bullish हैं FIs, pros as well as retailers. So जो ये लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे आपको कॉल साइड में दिख रही फ्रेंड्स, दिस यू माइट सी टुडे एंड टुमारो गोइंग इन शॉर्ट कवरिंग, राइट। नाउ अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें मार्केट को, but before that let's look at what's happening in the international market, because that's what is driving right now our market, right? So डव जोन के फ्यूचर में देखते हैं एक बार फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है, राइट। सो डव जोन्स हैड गॉन अबाउट दिस ऑल टाइम हाई जो प्री कोविड का था डव जोन्स का, वो क्रॉस करके ब्रेकआउट लिया, बट अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन थी। सो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमको नजर आ रही है यहाँ पे, राइट। एंड यूएस में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन आ रही है, दैट्स रिफ्लेक्टिंग हियर नाउ। S&P 500 के फ्यूचर में मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है फ्रेंड्स। S&P 500 ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था ये लेवल पे मंडे की मार्केट में, अगेन ऑल टाइम हाई पे है, बट आज यहाँ पे भी थोड़ा सेल आउट दिखाई दे रहा है, राइट। Nasdaq, we were already seeing that in tech companies प्रॉफिट बुकिंग चालू थी काफी हफ्तों से। इन बिटवीन थोड़ा सर्ज आता है एक दिन दो दिन का, जैसे ये लेवल पे 23% फिबोनाची पे मार्केट जाती है, यहाँ पे people find there is a value in tech companies, तो बाइंग स्टार्ट हो जाती है, बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। देयर इज अ ट्रेंड लाइन व्हिच इज स्टॉपिंग Nasdaq टू मूव अपसाइड, राइट। सो ये भी एक कंसर्न है। अगर आप यूके का मार्केट देखें फ्रेंड्स, वहां पे भी फ्यूचर एक कंसोलिडेशन के फेस में है। इट इज नॉट स्टिल इवन रिसेंट हाई, राइट। पोस्ट कोविड प्री कोविड तो कंप्लीटली अलग लेवल है, उससे काफी डाउन है अभी भी यूके का मार्केट। अगर हम डेक्स देखें, मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ भी हमको दिखाई दे रहा है। जो रिसेंट हाई था जून जुलाई का, उस पीरियड के आसपास में ये भी एक कंसोलिडेशन के मोड में है, बट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की लाइन भी है, राइट, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक हो रही है, ऑल्दो मार्केट इज ट्रेडिंग अबव 100 and 200 days मूविंग एवरेज।
सो कुल मिला के हमको एक कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट बुकिंग की सिनेरियो दिखाई दे रही है यहाँ पे, और हमारा मार्केट भी बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है, मार्केट ओवरबॉट जोन में है, बट बुल्स आर राइट नाउ अनकंट्रोलेबल। सो दैट अगेन यू माइट सी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे जो ये पिछले 7-8 ट्रेडिंग डे के वॉल्यूम से देवर अबव द नॉर्मल वॉल्यूम्स, राइट, बट अभी अगर आप देखेंगे तो दे हैव रिड्यूस्ड नाउ, राइट। लास्ट 2-3 दिन 4 दिन का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो बिलो एवरेज वॉल्यूम है अभी हमारा ट्रेड, राइट। सो ये भी दिखा रहा है कि मार्केट में एक्चुअली बाइंग की स्ट्रेंथ कम हो रही है। ऑफकोर्स एफएनओ में तो ट्रेड हो ही रही है। सो बिग प्लेयर्स आर राइट नाउ एक्टिव इन एफएनओ। नाउ अगर निफ्टी के आरएसआई को देखें फ्रेंड्स तो 77 है, ओवरबॉट जोन में है डेफिनेटली, बट 60 के ऊपर है तो बुलिश है। आज इंडिया विक्स 3.5% बड़ा है। सिंस मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन, सो इंट्राडे ट्रेड के टाइम पर भी हमको वैसे ही हमारी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए है, ऐसा मेरा मानना है। ना अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखें फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो कि आज मोरलेस निफ्टी जो हमारी ओआरसी थी उसी के अंदर कंसोलिडेट हुई है। सो अवॉइड टू ट्रेड बिटवीन 12,829 टू 12,900, ये कंसोलिडेशन का एक जोन बना हुआ है। अगर निफ्टी 12,912 से ऊपर जाती फ्रेंड्स तो आपको एक 25-30 पॉइंट का ये ट्रेड मिल सकता है अपसाइड में, जो कि 12,937 के टारगेट को लेके जाएगा आपको। अगर 12,937 टूटता डेफिनेटली देन यू हैव ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट अपसाइड। सो 13,000 का ये टारगेट विल बी योर गुड टारगेट। 13,000 पे you should book the profit and wait and watch whether it breaks 13,000 or not. Now only strong short covering can break that level, otherwise market may hover in this zone, right? Now अगर निफ्टी कल 12,797 के नीचे जाती, यू कैन डेफिनेटली ट्रेड निफ्टी टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 12,720। पहला टारगेट आपका 12,750 का होगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट देगा, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 720 का होगा। ओवरऑल आपको अराउंड 60-70 पॉइंट यहाँ पे डाउन साइड में मिल सकते हैं, राइट। ट्रेड कंफर्म करें ओनली आफ्टर योर ओआरसी इज ब्रोकन ऑन अपसाइड और डाउन साइड। सिमिलरली लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगेन जैसे कि मैंने कहा था, फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट ये एक जोन में कंसोलिडेट होते रही बैंक निफ्टी, एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई थी, राइट। सो 28,845 से लेके 29,180 के आसपास में वो, और रादर 29,273 तक अवॉइड करें ट्रेड करना, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। इन केस अगर 29,000 ब्रेक होता है देन यू कैन टेक अ ट्रेड ऑन द लोअर साइड। बियरिश ट्रेड ले सकते हैं आप, जहां पे कि आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास में एक बैंक निफ्टी की ट्रेड मिल सकती है। वॉच आउट है 28,845। अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है, बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, देन यू कैन कंटिन्यू फॉर 28,726। अगर मार्केट गैप डाउन होके चालू होती है 28,726 के नीचे आती है तो देन 28,520, दैट विल गिव यू ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का शॉर्ट ट्रेड, राइट। बट ये जोन में अवॉइड करें। नाउ इन केस अगर बैंक निफ्टी 29,000 के ऊपर बुलिश बायस के साथ में स्टार्ट होती एंड योर ओआरसी इज ब्रोकन, वॉच आउट। एक 25-30 मिनट तक सस्टेन करना चाहिए ओआरसी के ऊपर, देन यू कैन टेक लॉन्गर ट्रेड। एंड 29,273 के ऊपर डेफिनेटली आपको बुलिश ट्रेड मिलेगी, which will give you almost 200 point, right? And higher side में काफी you know टारगेट जो है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के ऊपर है। इन बिटवीन देयर इज नो रेजिस्टेंस। सो अगर 29,273 के ऊपर मार्केट रहती है कल, यू शुड डेफिनेटली think of being bullish, and short covering may make it further bullish bias, right? अच्छा, बैंक निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन देखें फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन जो 19 नवंबर का है, that has got bullish bias. PCR is almost 1.29 and next series का 1.52 है, right? And 29,000 itself has got a lot of
fresh writing of options, right? आप यहाँ पे put देखेंगे तो almost 7 लाख की put writing हुई है, overall 7.87 contracts हैं यहाँ पे. Similarly, अगर आप 29,500 पे देखेंगे तो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश दिख रहे हैं. तो ये एक हमको रेंज दिख रही है, बट अगर ये लेवल टूटता है तो देन योर नेक्स्ट लेवल इज स्ट्रेट 30,000. Similar thing we saw from the price action perspective, right? Now, in order to conclude, let's see overall, since market overbought zone में है, so I'm expecting some correction. Now correction होगी तो maybe 23% Fibonacci level पे होगी, so that will be on the downside. And अगर Nifty 23% retrace करके bullish bias दिखाती तो then of course 13,500 would be our midterm target. 12,587 which is our 23% retracement and Nifty is a crucial level. अगर उसके नीचे निफ्टी जाती है फ्रेंड्स, then 12,000 is the downside target for Nifty. Similarly, for Bank Nifty, if you see 27,903 is our 23% Fibonacci retracement. अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो then you would see 26,000 का हमारा टारगेट है और इसके ऊपर 32,500 का हमारा टारगेट इंटेक्ट रहता है, राइट? सो कल के लिए 12,700 to 13,100 की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है, 28,500 से 30,000 की बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है. मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन, सो कंसोलिडेशन एंड करेक्शन शुड नॉट सरप्राइज यू. मे बी शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट ऊपर जाएगी एंड उसके बाद में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा. द होल वर्ल्ड मार्केट इज राइट नाउ इन कंसोलिडेशन मोड, सो आवर मार्केट में have inclination towards the same thing. Fear of rising corona cases in Europe and US and strict lockdown conditions are the fear factors which one must not forget in the market. Quarter 2 के results mostly आ चुके हैं and they were positive and they were very conducive for the market, but market will be searching for more positive cues and as of now ऐसे positive cues बहुत ज्यादा सामने में नजर नहीं आ रहे, right? So अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड्स तो hedge your trades now and stop loss definitely use करें, and if you are in profit trailing stop loss use करें such that your logged profits can be encashed. I'm sure with this you are able to trade with confidence and profit. Do watch option chain time to time when you are trading and look for India VIX charts or USD INR chart. That also helps you to understand the emotion of the market, right? And thank you very much for watching the video. To get latest information, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Share the video with your friends and trading communities. We have plenty of videos here, friends, which are created for our trading community to get benefited, right? Thank you once again for watching and liking the video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.